Very good morning, students. Welcome to this continuity and differentiability chapter. Uh, in the last class, we have discussed the concept based on this continuity and differentiability, and we started the questions solving based on this continuity and differentiability. Around 10 questions we have discussed in the last class. This is class 3, continuity and differentiability class 3 it is. So let us begin with this 11th question. Find the value of k. Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point. Here we have given less than pi and greater than pi. X less than pi greater than pi is given. At pi we are checking. We are taking that the given function is continuous. If it is continuous, then what is the value of k that we have to find? This kind of problem already we have discussed in the last class. The last class में ऐसे problem हमने solve किया था. Let f is continuous. F is continuous at x is equal to pi. X is equal to pi, and we have given less than and greater than symbol. It means that we have to take left-handed limit is equal to right-handed limit. When a function is continuous at a particular point, then we can take left-handed limit equal to right-handed limit. So left-handed limit is equal to right-handed limit. Left-handed limit is limit x tends to pi minus f of x. F of x for left-handed limit less than function we are taking, that is kx plus 1. That is what kx plus 1. It is equal to right-handed limit is limit x tends to pi plus f of x. F of x we are considering greater than function. For RHL, for right-handed limit we are taking the greater than pi function, that is equal to cos x. Cos x we are taking. Now applying limit, substituting x is equal to pi in this function, then this become k into pi plus 1 is equal to cos pi, and we know that cos pi value is minus 1. Then k pi plus 1 equal to minus 1. Why? Because we know that cos pi value is minus 1, and plus 1 taking to RHS, again it become minus 1. K pi is equal to minus 1 minus 2. K pi is equal to minus 2, then k is equal to, we get minus 2 divided by pi. K equal to minus 2 divided by pi is the correct option. Understood, students? So when we have given a less than and greater than symbol, we are taking left-handed limit equal to right-handed limit. Suppose it is given like this, x not equal to pi and x is equal to pi. Like this two functions are given. Then we are taking, that is f of c is equal to limit as x tends to c f of x. ये मेथड हम कब यूज करेंगे? अगर वहां पे इस तरह का फंक्शन है, ठीक है ना. लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कब यूज करेंगे? अगर वहां फंक्शन में लेस देन ग्रेटर देन सिंबल है, तो हम लोग लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट ऐसे इक्वल लेंगे. अगर वहां नॉट इक्वल टू और इक्वल टू सिंबल है, तो फिर ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे, एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स. इतना याद रखेंगे आप. ओके ना? ओके. देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 12. Question number 12. That differentiate sin square x with respect to e power cos x. ओके, नॉर्मली डेरिवेटिव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. वी आर फाइंडिंग derivative of one function with respect to another function. Here given that the first function y is equal to sin square x, यहाँ given है, देखिए पहला फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स है, तो इसको हम z मान लेंगे. z इक्वल्स टू ई पावर कॉस एक्स. वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z.
y डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z हमको कैलकुलेट करना है, तो dy बाई डी जेड फाइंड करना है। तो फिर देखिए यहाँ पे हम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले y को विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर z को विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट करके अगर दोनों डिवाइड करेंगे तो फिर हमको dy बाई डी जेड मिलेगा, dy बाई डी जेड। Let us differentiate this y equal to sin square x with respect to x. Then this become dy by dx equal to sin square x derivative 2 sin x. First I have differentiated power 2. Power 2 को पहले differentiate किए। तो देखिए अगर एक से ज़्यादा फंक्शन कॉम्पोज्ड है वहाँ चेन रूल अप्लीकेबल होता है। तो पहले यहाँ देखिए होल स्क्वायर है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है, तो इसीलिए हम पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें। यू नो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x। फिर स्क्वायर होने के बाद sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, दिस बिकम इनटू cos x। dz बाय dx इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर कॉस एक्स, एक्स की जगह कॉस एक्स है, तो वंस अगेन वी आर अप्लाइंग चेन रूल टू डिफरेंशिएट दिस। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यहाँ पहले पावर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स हुआ, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, या ई पावर का डेरिवेटिव ई पावर एज इट इज और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नाउ वी रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड यानी कि y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z चाहिए, तो डी वाई बाई डी जेड होता है। तो अगर ये दोनों हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी जेड, डी एक्स कट जाएगा, तो बाकी डी वाई बाई डी जेड मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड कितना है यहाँ पे ई पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स लिखेंगे यहाँ। तो देखिए ये साइन स्क्वायर में से 2 साइन एक्स है ना, ये दैट इज नॉट 2 साइन स्क्वायर, एक्चुअली दैट इज 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स होता है। ओके क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x स्क्वायर नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा। तो देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स और वो डिवाइड करें हम लोग, तो डिवाइड करने से देखिए ये साइन एक्स चला जाएगा, द रिमेनिंग इज डिवाइडेड बाय माइनस है ना, तो माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय ई पावर cos x, दिस इज द फाइनल आंसर आ गए। देखिए इस आंसर को यहाँ चेक करेंगे तो देखिए वो 2 cos x है, -2 cos x, यहाँ ओनली sin x है। हाँ यहाँ देखिए -2 cos x यहाँ है डिवाइडेड बाई ई पावर cos x, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना राइट है, सेकंड ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करेक्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, we have given that y is equal to sec inverse, y is equal to sec inverse 1 divided by 2x square minus 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, dy by dx हमको फाइंड करना है। एक्चुअली दिस फंक्शन इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट, ये जो फंक्शन है सिंपलेस्ट में नहीं है, ओनली सेक इनवर्स एक्स रहता तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते, वो एक्स की जगह इतना बड़ा ब्रैकेट दे दिया 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया। तो पहले हम इस फंक्शन को सिंपलेस्ट में लिखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। ओके तो सिंपलेस्ट में लिखने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म में रहता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक ऐसा फार्मूला है वो 2x स्क्वायर माइनस 1 की तरह है। इसीलिए हम क्या करना है, यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट कर देना है,
एक्स की जगह cos x पुट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, cos थीटा, थीटा एक्स ने थीटा, एक्स की जगह cos थीटा पुट कर देना, ठीक है ना। अगर x की जगह cos थीटा पुट करेंगे देन थीटा बिकम cos इनवर्स x, क्या बनेगा, थीटा cos इनवर्स, cos को LHS में लेंगे तो cos इनवर्स होता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, इसमें पुट करेंगे देन इट बिकम y इक्वल टू sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, एक्स cos थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। we know that the 2 cos square theta minus 1 is equal to cos 2 थीटा। कौन सा फार्मूला होगा ये, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहां पुट करेंगे दिस बिकम sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा होगा। एंड वी नो दैट 1 बाई cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है, that is equal to sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा बनेगा, 1 बाई cos 2 थीटा क्या बनेगा, sec 2 थीटा, तो sec इनवर्स से कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, 2 थीटा इज रिमेनिंग, 2 theta is remaining, but already we know what is theta here, theta is cos inverse x, then it become 2 cos inverse x, what is y equal to 2 cos inverse x, देखिए पूरा ब्रैकेट चला गया, ब्रैकेट की जगह ओनली x आ गया, ब्रैकेट की जगह ओनली x आ गया। नाउ दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वी कैन डिफरेंशिएट दिस, then dy by dx is equal to, I am writing this to constant as it is, cos inverse x का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला then this become minus 2 divided by 1 minus x square। अगर इस ऑप्शन को चेक करेंगे हम, -2 डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं ये सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में माइनस टू है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फोर्थ ऑप्शन में है, इसका मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट x, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ब्रैकेट x जो होता है, ब्रैकेट x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ब्रैकेट x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ओके, वेयर ब्रैकेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ये जो फंक्शन है ब्रैकेट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे होगा, यहाँ 4 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, चारों पॉइंट में एक डिफरेंट नंबर है, वो है फोर्थ वन, वो एक डेसिमल है, एक डेसिमल है, तो फिर वो क्या रहेगा, वो डेसिमल पे कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूअस होता है, डेसिमल में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बाकी इंटीजर से इंटीजर्स पे वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा फ्रैक्शनल पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज 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 कंटिन्यूअस एट डेसिमल। तो ये फिर ये 4 ऑप्शन में डेसिमल कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के सेट में कर्नाटका सेट में के सीईटी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कि 4 पॉइंट या 4 ऑप्शन देके एक इंटीजर रहेगा और बाकी 3 डेसिमल रहेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, 3 डेसिमल नंबर रहेंगे और एक इंटीजर रहेगा, जो इंटीजर है वो करेक्ट हो जाएगा, इंटीजर जो है वो करेक्ट होता है, याद रखिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
So we have given this question, find the value of a and b such that the function defined by f of x equal to 5 if x is less than or equal to 2, ax plus b if x is greater than 2 less than 10, and 21 if x is greater than or equal to 10 is a continuous function. ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर a और b का वैल्यू क्या होगा? सो दैट वी हैव टू फाइंड a और b का वैल्यू हमको फाइंड करना है. ओके तो कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? वो यहां इस फंक्शन में दो डिफरेंट पॉइंट ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, 2 and 10. 2 and 10, two different points are mentioned in the question. In that point we are taking the all the three functions. तीन फंक्शन है यहाँ पे. पॉइंट 2 है, 2 है और ये 10 है. देखिए दो पॉइंट है और फंक्शन है 3, 5 ax प्लस बी और 21. ठीक है ना. दिस एंड पॉइंट, एट दिस एंड पॉइंट इट इज गिवन दैट कंटिन्यूअस फंक्शन. तो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a and b. So let us take first the given function is continuous at x equal to 2. We'll get one equation of the we'll get one equation which is in a 2 variable. On taking that the given function is continuous at x equal to 10, we'll get another equation of the line. Yeah, pair of linear equation we'll get. So on solving these two equations, we will get a and b value. Solution. Let f is continuous. f is continuous at x is equal to 2. x equal to 2 पे वो कंटिन्यूअस है ऐसे मान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट होगा. ठीक है ना. तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट. लेफ्ट हैंडेड लिमिट यहाँ 5 है, लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 वाला फंक्शन क्या है? यहाँ पे 5 है. और x ग्रेटर देन 2 ये राइट हैंडेड लिमिट होगा. राइट हैंडेड लिमिट 2 के लिए राइट हैंडेड लिमिट क्या होगा? ax प्लस बी. इसमें 2 x की जगह 2 लेंगे तो ये होगा 2a प्लस बी होगा. टेकिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1. थोड़ा सा मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ स्पेस टू सॉल्व दिस और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर. 2 के लिए लेफ्ट हैंडेड लिमिट 5 है और राइट हैंडेड लिमिट क्या होगा? x ग्रेटर देन 2, दैट इज ax प्लस बी. x की जगह हमने 2 ले लिया. नेक्स्ट also f is continuous. f is continuous at x is equal to 10. दूसरा पॉइंट भी है, देखिए x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 10 है. ठीक है ना. तो यहां पर भी क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट होगा. लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगा ax प्लस बी, क्योंकि लेस देन 10 है. एट 10 लेस देन 10 लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ग्रेटर देन 10 राइट हैंडेड लिमिट होगा. या x की जगह 10 लेंगे हम लोग, ये होगा 10a प्लस बी. RHL होगा 21. RHL होगा 21. तो देखिए ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं. ऑन सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस वी विल गेट a एंड b वैल्यू. तो देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा. यहाँ b कॉमन वेरिएबल है, तो अगर दोनों इक्वेशन हम सॉल्व मतलब माइनस करेंगे तो b कट हो जाएगा और a का वैल्यू मिलेगा. एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. ठीक है ना. आई एम टेकिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है. इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है 10a प्लस बी इक्वल टू 21. और इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5. जब दोनों हम माइनस करेंगे, माइनस 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 सिंबल चेंज होंगे, b और b कैंसिल. 8b माइनस 2a ये होगा, सॉरी 10a माइनस 2a 8a होगा. 21 माइनस 5 ये होगा 16. तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 2. a का वैल्यू कितना आया है? a का वैल्यू 2 आ गया. इफ वी सब्स्टिट्यूट a वैल्यू इन एनी वन ऑफ दीज 2 इक्वेशन विल गेट b वैल्यू. ठीक है ना. देन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दैट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 2 पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? देखिए 5 इज इक्वल टू 2a. a की जगह 2 पुट करना बेटा.
ठीक है ना, 2a प्लस बी, 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, ए की जगह मैंने 2 ले लिया तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. तो on taking this 4 to LHS, this become 5 minus 4 equal to b, and we will get b is equal to 1, a is equal to 2, b is equal to 1. इस आंसर को हम चेक करेंगे. ये इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल्स टू 1. आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसमें ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल्स टू 1 है. दैट इज द राइट आंसर. अंडरस्टूड ना? ओके. तो पिछले ऐसे क्वेश्चंस में हमने देखा कि वहां पे लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 या लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 एक ही पॉइंट रहता था. इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट है. एट एक्स इक्वल टू 2 भी है और एक्स इक्वल टू 10. ये दोनों पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है. तो फिर हमने कैलकुलेट किया ए और बी का वैल्यू. ठीक है. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू है या कौन सा भी ट्रू नहीं है. ठीक है ना, तीनों में से कौन सा करेक्ट है वो हम चेक करेंगे. कौन सा भी करेक्ट नहीं है तो फिर लास्ट वन करेक्ट रहेगा. नन ऑफ दिस. लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. We already know that every continuous function may or may not be differentiable. फंक्शन अगर एक कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. यस, कॉन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का कॉन्वर्स है. मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कंटिन्यूअस जरूर होता है. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है. यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट है. एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बोल रहे हैं. कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. एक्स स्क्वायर जो है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर. कॉस एक्स भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस. एक्स स्क्वायर कॉस के अंदर अगर कॉम्पोज हुआ तो फिर वो कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये रॉन्ग है. वो डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है इसलिए रॉन्ग है, वो कंटिन्यूअस होता है. तो फिर ये तीनों ऑप्शन में राइट कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. तो फिर नन ऑफ दिस नहीं होगा. तीनों भी अगर रॉन्ग है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है. अंडरस्टूड. सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो दैट इज द राइट स्टेटमेंट हियर. नेक्स्ट, let f of x equal to mod x, then we have a given function f of x equal to modulus function. तो फिर इसमें से कौन सा राइट है हमको चेक करना है. ठीक है ना. इसमें भी देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह तीन ऑप्शन दिया है, चौथा नन ऑफ दिस. ठीक है. क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा या स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा या स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा. अगर तीनों भी नहीं है तो क्या रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा. ठीक है ना. तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है इधर, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. यू नो मॉडुलस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर. ठीक है ना. लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता. कब नहीं होगा, एट द टर्म और द फंक्शन विच इज इन द मॉडुलस इज 0. मॉडुलस फंक्शन जब 0 होगा उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस होता. ठीक है ना. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है. अभी मैंने बताया कि अगर वो फंक्शन 0 जहां पे होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. लेकिन अगर हम x की जगह 0 लेते हैं ये मॉड 0 होगा. मॉड 0 होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल हुआ. ये फंक्शन जहां पे 0 होगा वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है. समझ रहे हैं आप. सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन क्वेश्चन ये ऑप्शन क्या दिया इधर, डिफरेंशिएबल, यानी कि ये भी रॉन्ग ऑप्शन है.
ये कंटिन्यूअस होगा या टेक्स इक्वल टू जीरो, वो तो राइट है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो फिर जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो स्टेटमेंट टू तो वही है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है, यानी कि वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड ना? तो फिर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो फोर ऑप्शन से दो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को करेक्टली रीड करेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट है उसको हम टिक करेंगे। क्लियर? ओके, so let us move to the next problem. X and y are connected parametrically by the equations given by x equal to 2at square and y equal to 80 power 4. Find dy by dx. तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। तो देखिए डेरिवेटिव्स में दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल के साथ में अगर तीसरा वेरिएबल आया तो थर्ड वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इसके साथ एक टी वेरिएबल भी दिया है, तो टी क्या होता है? पैरामीटर। तो दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, and later on dividing these two derivatives we'll get dy by dx. So what is the first equation here? First equation is x equal to 2at square. Let us differentiate this. Differentiate with respect to t. With respect to parameter we have to differentiate this function. Okay, then this become dx by dt equal to 2a, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, देन दिस बिकम 4at. तो व्हाट इज dx by dt? 4at. We have another function that is y equal to a t power 4. This second function also we are differentiating with respect to t. Again differentiate with respect to t, then this become dy by dt is equal to a, as it is t power 4 derivative is 4t cube होगा। हमको क्या फाइंड करना है? dy by dx. On dividing these two derivatives we'll get a dy by dx. So this implies dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. dy by dt कितना है? 4at क्यूब है, और ये जो dx by dt है that is 4at है, 4a cancel and t cube by t that become t square. तो dy by dx कितना हुआ जी? t square. Let us take the correct option here, t square. हाँ, yes, this first option we have a t square in this, so that first option is correct. Okay, so this kind of equations are called पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है, दो अलग अलग इक्वेशन, एक x इक्वल टू और y इक्वल टू। इन दोनों के अलावा इस इक्वेशन में एक और वेरिएबल है दैट इज t। ये जो तीसरा वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। ओके, दो वेरिएबल के साथ अगर तीसरा वेरिएबल आया तो तीसरा वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ओके, और क्वेश्चन में भी यहां दिया हुआ है, देखिए पैरामीट्रिकली दे कनेक्टेड बाय पैरामीट्रिकली, तो ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इनको डिफरेंशिएट करके दोनों डेरिवेटिव्स को डिवाइड करेंगे, देन विल गेट dy by dx. सो dy by dx इज t स्क्वायर। अंडरस्टूड ना? ओके, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यस, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर क्वेश्चन। ये भी parametrically it is given. We are finding the correct option for this question.
we have given one question, one equation x equal to another equation y is equal to. On dividing these two derivative, we will get dy by dx. We required dy by dx here. dy by dx हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या है, इसमें भी पैरामीटर t है, साइन t. t इज अ पैरामीटर. अगर यहाँ t की जगह थीटा रहता, थीटा इज पैरामीटर. अंडरस्टूड. लेट अस गिवन x इज इक्वल टू साइन t, इसको विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dx बाई dt इज इक्वल टू साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है. इसके साथ एक और इक्वेशन भी दिया, y इज इक्वल टू cos 2t. y इक्वल टू cos 2t गिवन है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस बिकम dy बाई dt इक्वल टू cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t. cos ax का डेरिवेटिव a माइनस a sin ax, तो ये होगा माइनस 2 sin 2t, ठीक है ना. देन वी डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड दिस dy by dt and dx by dt will get dy by dx. तो ये dy कितना है, माइनस 2 sin 2t और डिवाइडेड बाय ये जो dx by dt है वो है cos t. चलिए हम इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन ये ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है इसमें. ए बी सी डी चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये इसको सिमिलर नहीं है, ठीक है ना. तो थोड़ा सा इस आंसर को चेंज करेंगे हम. कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ हर ऑप्शन में टी 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 गिवन है, लेकिन इसमें यहाँ 2t आया हुआ है, आंसर में 2t आया हुआ है. तो 2t को 1t में चेंज करेंगे. मल्टीपल एंगल को सब मल्टीपल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये 2 एज इट इज लिखेंगे. साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू कॉस t होता है. 2t को 1t में कन्वर्ट कर दिए हम, डिवाइडेड बाय क्या है, cos t. दिस cos t कैंसल, रिमेनिंग इज माइनस 2 टू ज़ा 4 sin t. 4 sin t इज द आंसर. चेक करेंगे अभी हम, माइनस 4 sin t, माइनस 4 sin t, ये माइनस 4 cos t, 4 cos t माइनस 4 sin t, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है. तो पहले हम लोग ये x और y के विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर हम डिफरेंशिएट किए और दोनों डिवाइड करने से जो आंसर आया वो ये जो चार ऑप्शन गिवन है दैट इज नॉट रिसेंबलिंग विद दैट. इट मींस वी हैव टू स्टिल सिंप्लीफाई दैट. ओके, इसको और सिंप्लीफाई करने से अपने को करेक्ट आंसर आएगा, ऐसा समझ के इसको फिर सॉल्व करना है. ये आंसर आने के बाद फिर आप सोचेंगे कि अरे अपना आंसर नहीं आया है, तो फिर आप गलत हो जाएंगे, ठीक है ना. ट्राई टू चेंज दिस आंसर एज द गिवन 4 ऑप्शंस, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये चार में से एक ऑप्शन रहेगा ही, ठीक है ना. तो थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कि यहाँ पे 2t है और ऑप्शन में सारे ऑप्शन में 1t है, तो मल्टीपल को सब मल्टीपल में अगर चेंज करेंगे हो सकता है ये चारों में से एक ऑप्शन आए. क्लियर, ऐसे सोच के सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द करेक्ट ऑप्शन. हियर द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज find the second order derivative of the function log x. We have a function log x, we are finding second order derivative, यानी कि इस फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं. इस फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं. दैट इज let y is equal to log x is a function, and we know that log x derivative is 1 by x. Then dy by dx is equal to 1 divided by x. dy by dx कितना हो रहा है, 1 by x हो रहा है. तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है. वंस वी हैव डिफरेंशिएटेड इट्स वैल्यू इज 1 by x. वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस बिकम d2y divided by dx square. d2y by dx square is equal to 1 by x का dy by dx क्या होता है, 1 by x.
तो dy बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स पावर 1. We know that derivative of 1 divided by x power n is minus n divided by x power n plus 1. अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे n की जगह 1 लेंगे हम, दिस बिकम माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1 प्लस 1, दैट बिकम माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. तो चेक करेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. यस, दिस फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग द गिवन फंक्शन डेरिवेटिव ट्वाइस. ठीक है ना. तो dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. We are using this formula. Derivative of 1 by x power n is minus n divided by x power n plus 1. Understood ना. समझ में आ रहा ना प्रॉब्लम्स. तो ऐसे आप लोग रोज ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो इनका जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को समझ के ऐसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. समझ रहे ना आप लोग जी. चलिए इसे यहाँ पे इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे मार्क्स आएंगे. तो आपको हो सकता है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिले डिग्री के लिए. ओके, चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.